ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 15th ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਡੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਸੈਫ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। HH4 ਹੈੱਡ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 74th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਵਰੀਵਨ। ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਵਰੀਵਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਦਸੰਬਰ। ਰਾਜਾਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਸਾ ਦੀ ਅਰਮੈਟਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 18 ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 9 ਮੈਨ ਔਰ 9 ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਾਚਾਰੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2020 ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਬਿਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 2020 ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਥਲੀਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਲੈਬਰੋਨ ਜੇਮਸ ਜੋ ਕਿ USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ CEO ਆਫ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ CEO ਜੈਡਮ ਨੈਸ਼ਡੇਕ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 2019 ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਦੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 50 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UK ਬੇਸਡ ਈਸਟਰਨ ਆਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਰਾਣਾ ਦਗੂਬਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਵੈਗ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 93rd ਐਨੂਅਲ ਜਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਜਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਇੰਡੀਆ। ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ UK ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ
ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2022 ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। नेक्स्ट है 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट द्वारा लॉन्च किया गया अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत लवे है जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स कौन ने? जी कृष्णा रेड्डी द्वारा इनॉग्रेट किया गया नैशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, नैशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट किथे? CRPF के ग्रुप सेंटर हकीमपत हैदराबाद के विच। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा मर्जर अनाउंस किया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC नूं ऑल इंडिया काउंसल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन के नाल मर्ज कर दिता जाएगा 2021 तक। नैक्सट है एक इंडियन फुटबॉलर, एक ओबिचुरी डिस्कस करते हैं। इंडियन फुटबॉलर सीगे डी एहीराज, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन 1962 दी गेम्स दे विच गोल्ड मैडल हासिल करने वाली टीम दे पार्ट थे। CII रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने एमाजोन इंडिया के नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? MSME सैक्टर दे विच एक्सपोर्ट पोटेंशियल नूं इंक्रीज़ करने लई। इसी दे नाल मास्टर कार्ड दे नाल भी पार्टनरशिप की गई ताकि डिजिटल सक्षम इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया जा सके। इसरो अच्छा CII की गल करते हैं। CII बारे याद रखांगे मुंबई के विच हैडकुआटर है, उदय कोटक इसके हैड पॉइंट किए गए थे। इसरो द्वारा अनाउंसमेंट की गई है CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, परसों इसनूं लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो द्वारा CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट PSLV C50 के राही इसनूं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा तो लॉन्च किया जाएगा। नैक्सट है RBL बैंक जिसका हैडकुआटर मुंबई के विच 1943 के विच बनाई गई सी। तो इन्हां द्वारा बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया गया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाल, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाल बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया गया। यूरोपियन यूनियन द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन 55% तक कंट्रोल करनगे 2030 तक। ब्रुसल्स बेल्जियम के विच यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर है। 27 मैंबर कंट्रीज़ ने ब्रिटेन द्वारा रिसेंटली इस एग्जिट किया गया सी। उर्सुला वॉन डर लेयन इसके डायरैक्टर ने। अमान 2021 काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अमान पूछी जाएगी एक्सरसाइज कि अमान 2021 इस साल कित्थे ऑर्गेनाइज की जा रही है 2021 के विच। तो इसनूं पाकिस्तान के विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस तो इलावा ये एक नाटो कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के विच बनाई गई सी। ब्रुसेल्स बेल्जियम के विच हैडकुआटर है और 30 मैंबर कंट्रीज़ ने नाटो की 30 मैंबर कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विचों नॉर्थ मासेडोनिया है जिहड़ी लास्ट नंबर पर ऐड की गई सी। इस तो इलावा एक इंपोर्टेंट फैक्ट इसके रिलेटेड कि रशियन नेवी है जी रशिया इस 2011 तो बाद हुण पार्टिसिपेट करेगा, लगातार 10 साल बाद पार्टिसिपेट करेगा। इस तो इलावा एवली कंट्रीज़ भी इस पार्टिसिपेट करनी है। नैक्सट है मोरक्को चौथा अरब नेशन बनया UAE, बहरेन और सूडान तो बाद जिसने इजराइल के नाल अपने रिलेशनस नूं अच्छा किया। ठीक है, इजराइल रिलेटेड भी न्यूज़ है, डिस्कस करांगे। इजराइल के नाल ही अगर आप गल करते हैं हनुका फैसटिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इजराइल के विच ऑर्गेनाइज किया जाता है फैसटिवल ऑफ लाइट्स के नाम नाल जानिया जाता है। जोसफ साफरा ब्राज़ील के रिचेस्ट परसन और वर्ल्ड के वैल्दीएस्ट बैंकर की गल करते हैं, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। 5th एडिशन ऑफ इंडिया और म्यांमार की बायलैटरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई ड्रग कंट्रोल और कॉरपोरेशन के लिए। बायलैटरल मीटिंग इंडिया म्यांमार की ड्रग कंट्रोल और किस दे लिए? कॉरपोरेशन के लिए, ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन के लिए।
उज्बेकिस्तान द्वारा फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का पहला वर्चुअल समिट उज्बेकिस्तान के नाल ऑर्गेनाइज किया गया। इस दे रिलेटेड न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नैक्सट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया गया एंटरटेनमेंट सैक्टर नूं, फिल्म सैक्टर नूं इंडस्ट्री स्टेटस किहड़ी स्टेट द्वारा? महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ही दाजीपुर सेंचुरी के लिए, दाजीपुर सेंचुरी जो कि राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, इस दे लिए 25 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की गई। आंध्र प्रदेश द्वारा जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम लॉन्च की गई। जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम लॉन्च की गई है, जिस दे अंडर शीप्स एंड गोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश द्वारा ही कमेटी सैटअप की गई इलूरू विलेज दे विच इलनेस का कारण जानने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूएसओएफ की गल करते हैं, यूनाइटेड सर्विस ऑबलीगेशन फंड स्कीम, यूनाइटेड सर्विस ऑबलीगेशन फंड स्कीम नूं लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश और असम दे विच मोबाइल कवरेज पहुँचाने के लिए। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा एक ट्रक माउंटेड एंटी स्मोक गन नूं टेस्ट किया गया दिल्ली दे विच। 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है जिहड़ा देहरादून उत्तराखंड दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। नैक्सट है कुछ नैशनल पार्क्स डिस्कस कर लेने। तो बिहार दे विच वाल्मीकि नैशनल पार्क और विक्रमशिला नैशनल पार्क, वाल्मीकि और विक्रमशिला नैशनल पार्क बिहार दे विच ने। छत्तीसगढ़ इंद्रावती कनेरघट्टा गुरु घासीदास, इंद्रावती कनेरघट्टा और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गोवा मोलम नेशनल पार्क या कह सकते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क। गुजरात वंसदा ब्लैक बक गिर फॉरेस्ट और मैरीन नेशनल पार्क, वंसदा ब्लैक बक गिर फॉरेस्ट और मैरीन नेशनल पार्क कित्थे है? गुजरात दे विच। चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल, फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे, नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? कल के दिन इसनूं ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 14 दिसंबर नूं नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा बाकी इंपोर्टेंट दिन आप डिस्कस किए सी, फॉर एग्जाम्पल 12 दिसंबर नूं या फिर कह सकते हैं 11 दिसंबर नूं पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे, 11 दिसंबर नूं डिस्कस किया आपने। इस तो इलावा यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज डे हुणे आप डिस्कस किया सी, यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज डे किस दिन? 12 दिसंबर नूं। इसी दे नाल 12 दिसंबर नूं ही आपने डिस्कस किया न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कदों ऑब्जर्व किया गया? 12 दिसंबर। नेक्स्ट है which organization has been awarded the most innovative research institute of the year under innovation quotient in CII Industrial Innovation Award 2020? CII हुणे आपां डिस्कस किया सी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बारे। तो CII द्वारा इंडस्ट्रीयल इनोवेशन अवार्ड्स अनाउंस किए गए। इस अवार्ड दे विच किहड़े इंस्टीट्यूट नूं कह सकते हैं या किहड़े IIT नूं मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया है? तो यह अवार्ड दिता गया IIT रुड़की नूं। IIT रुड़की नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, IIT रुड़की द्वारा ही अगर आप गल करते हैं प्राण वायु वेंटीलेटर डेवलप किए गए सी। यूनिसेवियर नाम का डिवाइस भी IIT रुड़की द्वारा डेवलप किया गया। IIT बॉम्बे द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप आईस सिंक बनाया गया सी। IIT मद्रास द्वारा मैडीकैब सब तो इंपोर्टेंट रहेगा IIT मद्रास के रिलेटेड कि मैडीकैब पोर्टेबल हॉस्पिटल किन्ना द्वारा डेवलप किया गया? IIT मद्रास द्वारा केरला के विच इसनूं लगाया गया सी, ये भी याद रखेंगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं IIT मद्रास की, तो IIT मद्रास ने NIRF की रैंकिंग नूं टॉप किया सी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क की रैंकिंग नूं टॉप किया सी IIT मद्रास ने। IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट इंपोर्टेंट रहेगा, कोरोसोर किट है जी ये डेवलप की गई सी IIT दिल्ली द्वारा। IIT मंडी द्वारा रैम डेवलप की गई सी, हाई स्पीड मैगनेटिक रैंडम असैस मैमरी रैम नूं डेवलप किया IIT मंडी ने। इस तो इलावा IIT मंडी ने हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स के लिए भी डेवलपमेंट
डिवाइसिस ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ क्वेश्चन किस तरीके ਨਾਲ पूछा जा सकता है, पॉलिटी के रूप में पूछा जाएगा, तो अपना आंसर होएगा फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 246। 7th शेड्यूल की गल करते हैं तो 246 आर्टिकल के नाल जुड़िया होया 7th शेड्यूल। तो इंडिया अगर आप गल करते हैं 7th शेड्यूल किस चीज़ के नाल रिलेटेड है, तो इस दे बारे डिस्कस करते हैं, क्यों न्यूज़ दे विच रहे ये भी डिस्कस करांगे। NK सिंह बारे आप जानते हैं। NK सिंह कौन ने? NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन ने। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन ने NK सिंह। ठीक है जी। इन्हों द्वारा कहा गया है कि जोड़ा 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल किस दे नाल रिलेटेड है? पावर्स दे नाल रिलेटेड है। आप डिस्कस किया होया है कि जोड़ा 7th शेड्यूल है, पॉलिटी दे विच तुसीं स्टडी की होएगी, 3 तरीके की पावर्स आंदियां ने, लिस्ट आंदियां ने, कह सकते हैं किहड़ी लिस्ट आंदियां ने? तो यूनीयन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यूनीयन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। ठीक है जी। डिफरेंट पावर्स ने जिहड़ियां इन्हां दे विच डिवाइड कीतियां होईयां ने कि किहड़ा काम किहड़ी चीज़ देखेगी। ठीक है। अगर सेंट्रल गौरमेंट द्वारा जिहड़े वर्क देखे जाते हैं यूनीयन लिस्ट दे विच जिहड़ी पावर स्टेट्स नूं दित्तियां गईयां ने स्टेट लिस्ट के अंदर, और जिहड़ी दोनां नूं मिल के दित्तियां गईयां ने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है जी। हुण ये सारी चीज़ किहड़े आर्टिकल दे विच है? 246 आर्टिकल दे विच है। और NK सिंह द्वारा कहा गया कि 7th शेड्यूल नूं या फिर 246 आर्टिकल नूं रिव्यू किया जाए। ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है, तो एडवाइजरी बॉडी है फाइनेंस कमीशन, तो एडवाइजरी बॉडी दे विच एडवाइस दी गई है कि 7th इस दे विच कुछ पावर्स ने जिहड़ी कि यूनीयन लिस्ट दे विच ने उन्हां नूं स्टेट नूं दिता जाना चाहिए, ताकि इस लिस्ट नूं होर थोड़ा फ्लैक्सीबल किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इंपोर्टेंट चीज़ बनेगी, न्यूज़ दे विच है, क्वेश्चन इसी तरीके नाल पूछा जाएगा, याद रखना। इस तो इलावा NK सिंह की ही गल करते हैं तो इन्हों बारे एक चीज़ होर याद रखांगे कि NK सिंह द्वारा रिसेंटली इन्हों की एक बुक रिलीज़ की गई सी, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है जी। नेक्स्ट है खुद कमाओ घर चलाओ, खुद कमाओ घर चलाओ इनिशिएटिव। ये किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? खुद कमाओ घर चलाओ इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सोनू सूद द्वारा। बेसिकली अगर 2020 की गल करते हैं तो इन्हों का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। इन्हों के वर्क करके कोविड-19 दौरान इन्होंने जोड़े भी इनिशिएटिव्स लाए, अच्छे इनिशिएटिव्स लोगों की हैल्प करने के लिए, उन्होंने करके इन्हों का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के विच है। ठीक है जी। तो हुण इन्हों द्वारा एक खुद कमाओ घर चलाओ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिस दे अंडर ई-रिक्शा महाराष्ट्र दे विच ई-रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उन्होंने लोगों को जिन्हों द्वारा आप सकते हैं जिन्हों की जॉब्स चलिया गई ने कोविड-19 के करके, तो उन्होंने ई-रिक्शा प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वह अपने घर का गुजारा कर सकन। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर सोनू सूद की ही गल करते हैं, हुणे आप डिस्कस किया 50 एशियन पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट के टॉप किया इन्होंने। ठीक है। प्रवासी रोजगार मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की थी इन्होंने, प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की थी। इस तो इलावा इन्होंने अगर आप गल करते हैं एसर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सी। ये गार्गो इंटरनेशनल के भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हों बनाया गया सी। इस तो इलावा इन्हों की बुक सी रिसेंटली बुक रिलीज़ की गई सी, आई एम नो मसीहा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं सोनू सूद नूं ही पंजाब इलैक्शन कमीशन का यूथ आइकन बनाया गया। इस तो इलावा SDG द्वारा इन्हों ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिता गया, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इन्हों दिता गया सी। ठीक है जी। ये सारे फैक्ट्स याद रखांगे आप सोनू सूद के रिलेटेड। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करते हैं, कल भी डिस्कस किया सी, अमिताभ बच्चन का नाम एलेक्सा दे वॉइस असिस्टेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। RBI द्वारा भी इन्हों के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया सी ट्विटर के कैंपेन के लिए। ठीक है जी। अक्षय कुमार नूं हॉर्लिक्स प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रोटीन प्लस के लिए। इस तो इलावा पॉलिसी बाजार के भी ब्रांड एम्बेसडर ने अक्षय कुमार। आमिर खान की गल करते हैं, वेंदातू और सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बनाए गए सी। आयुष्मान खुराना रिलेटेड एक चीज़ याद रखेंगे इंपोर्टेंट रहेगी कि यूनीसेफ द्वारा एडवोकेट एम्बेसडर बनाए गए सी आयुष्मान खुराना नूं
ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा आयुष्मान खुराना नूं भी 2 होर इंपोर्टेंट चीज़ों का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसने। नैक्सट है हू हैज़ बीन अवॉर्डिड WTA प्लेयर अवार्ड 2020। आपने डिफरेंट अवार्ड कुछ दिनों के डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल फिकी द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए गए। ठीक है जी। एथलैटिक्स वर्ल्ड एथलैटिक्स द्वारा एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड अनाउंस किए गए। वो सारे अवार्ड्स किते ना किसी एग्जाम के इंपोर्टेंट बन गए। इसी तरीके नाल WTA प्लेयर अवार्ड 2020 टैनिस द्वारा वर्ल्ड टैनिस एसोसीएशन द्वारा कह सकते हैं प्लेयर अवार्ड 2020 अनाउंस किया गया। तो सोफिया कैनिन USA दे सोफिया कैनिन ने जिहड़े ਉਹੀ सोफिया कैनिन ने जिन्हों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जित्या सी ऑस्ट्रेलियन ओपन जित्या सी टैनिस का ग्रैंड स्लैम। अगर सब तो पहले ग्रैंड स्लैम की गल करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो यह जित्या सीगा सोफिया कैनिन ने USA द्वारा इसनों USA तो यह बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। याद रखांगे। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है उन्होंने भी इत्थे डिस्कस करांगे। अच्छा अगर आप गल करते हैं कि क्वेश्चन की तो रिसेंटली आप गल करते हैं एग्जाम होके हटिया वाकफ बोर्ड का एग्जाम। तो उसके जिन्ने भी क्वेश्चन पूछे गए ने बिल्कुल ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लास्ट वीक के ही पूछे गए ने। ठीक है। अगर आप गल करते हैं तो अज अपनी 15 दिसंबर है तो तकरीबन 8 या 10 दिसंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए। उस एग्जाम के 8 या 10 दिसंबर को जी न्यूज़ रही ने उन्होंने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो करंट काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे। अगर तुहाडा एग्जाम कल भी है तो भी तुसी एक दिन पहला की क्लास में अटेंड जरूर कराया करो। उस दे विच ही आप कुछ पुरानी न्यूज़ भी इंटरलिंक करते होंगे तो वह न्यूज़ भी किते ना किते एग्जाम के पूछिया जांदियां ने। ठीक है। जिस तरीके नाल सोफिया कैनिन की गल करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जनवरी फैबररी के जित्या सी। ठीक है। जो इसनों ऑर्गेनाइज किया गया पर आप इत्थे भी डिस्कस कर रहे हैं तो यह किते ना किते एग्जाम के पूछा जाता है। तो अज की क्लास भी अपने लिए इंपोर्टेंट बन जाएगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जित्या USA तो बिलोंग करते हैं वूमेन सिंगल टाइटल। तो मैन सिंगल टाइटल जो जित्या सी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जित्या सी। ये भी याद रखांगे। ठीक है जी। इस तो इलावा मैरिया शेपरोवा जो कि रशिया तो बिलोंग करते हैं इन्हों द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है। सरेना विलियम्स भी USA तो बिलोंग करते हैं। ये याद रखांगे। इस तो इलावा ये 2 नाम इंपोर्टेंट रहेंगे। इन्होंने दोनों नाम रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अंकिता रायना जो कि इंडिया के ने और एक्तरीन गोडगोजे जो कि जॉर्जिया के ने। इन्हों करके ये न्यूज़ इंपोर्टेंट बनी है। वैसे वूमेन डबल टाइटल या मैंस डबल टाइटल ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनते होंगे पर इन्हों करके नाम इंपोर्टेंट बन जाएगा क्योंकि अंकिता रायना जो कि इंडिया के ने और एक्तारीन गोडगोजे जो कि जॉर्जिया कंट्री तो बिलोंग करते हैं। इन्हों द्वारा ITF वूमेंस टेनिस टूरनामेंट का फाइनल जिता गया जो कि दुबई के ऑर्गेनाइज किया गया सी। दुबई के ऑर्गेनाइज किया गया सी। वूमेन डबल टाइटल इन्हों द्वारा जितया गया। प्राइज मनी इस दे 1 लाख US है। 1 लाख US है। नैक्सट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। अगर गल करते हैं ग्रैंड प्रिक्स की या फॉर्मूला 1 कार रेसिंग की तो इस साल का यह आखिरी टाइटल है जो ऑर्गेनाइज किया गया। तो इन्हों किस द्वारा जितया गया? इन्हों जितया गया है मैक्स वर्सेटेपन द्वारा। हुण की अगर गल करते हैं लुइस हैमिल्टन की तो इन्हों द्वारा ही क्यों नहीं जितया गया? ज़्यादातर अगर ग्रैंड प्रिक्स की गल करते हैं इन्हों द्वारा ही जिते जाते हैं तो बहुत ही घट अंतर नाल हारते होंगे ने अगर गल करते हैं। पर यह इवेंट इन्हों करके इसलिए नहीं जिता गया क्योंकि इन्हों द्वारा पार्टिसिपेट ही नहीं किया गया। इन्हों अगर कुछ रिसेंटली गल करते हैं कोविड-19 के करके इन्हों की रिपोर्ट कह सकते हैं पॉजिटिव आई सी जिस करके इन्होंने लास्ट के 2 इवेंट्स के पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो मैक्स वर्सेटेपन द्वारा आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया है। मैक्स वर्सेटेपन कितों बिलोंग करते हैं? ये नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। कितों बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। किहड़ी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल तो ड्राइव करते हैं। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करिए तो जिन्ने ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ने ज़्यादातर तकरीबन 11 या 12 टाइटल लुइस हैमिल्टन द्वारा जिते गए हैं। वोल्टेरी बोटास द्वारा 2 टाइटल जिते गए हैं। दोनों के नाम डिस्कस कर लेने रशियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल वोल्टेरी बोटास द्वारा जिते गए हैं। कितों बिलोंग करते हैं? फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं। और एक केड़ी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? वोल्टेरी बोटास केड़ी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? ये भी मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्सेटेपन द्वारा
इस ग्रैंड प्रिक्स तो इलावा 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया सी। पीरे गैसली द्वारा एक सिंगल टाइटल जितया गया। पीरे गैसली द्वारा किहड़ा टाइटल जितया गया सी? इटैलीਅन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया सी और यह अल्फा टोरी टीम तो बिलोंग करते हैं और फ्रांस तो बिलोंग करते हैं। सर्जियो पैरेक्स बिल्कुल रिसेंटली जो टाइटल सीगा मैक्सीको तो बिलोंग करते हैं। ये आप इन्हां दा नाम डिस्कस किया सी रेहान दारूवाला के नाम के नाल आई थिंक आप डिस्कस किया सी जिन्हां ने फॉर्मूला 2 कार रेसिंग जीतने वाले पहले इंडियन बने सी दारूवाला। उसी तरीके नाल सर्जियो पैरेक्स मैक्सीको तो बिलोंग करते हैं और यह शखीर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता सी इन्होंने। शखीर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किन्होंने जीता सी? सर्जियो पैरेक्स ने। नैक्सट है स्पोर्ट्स रिलेटेड ही तीसरा क्वेश्चन अज का अपना कि 2022 अंडर 19 मैनस वर्ल्ड कप 2022 का अंडर 19 मैनस वर्ल्ड कप कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसनों वेस्ट इंडीज़ द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है जी। ICC के कुछ इवेंट्स की गल करते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया जाना है, उन्होंने बारे थोड़ा डिस्कस कर लें। इन्होंने सारे ऑप्शन के विचों ही इंपोर्टेंट वेन्यूज़ ने। फॉर एग्जाम्पल ICC का मैनस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विच इंडिया होस्ट करेगा। ICC का ही वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के विच बेसिकली 2021 के विच ऑर्गेनाइज किया जाना सी, ये पोस्टपोन किया गया है, ये न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। इसी तरीके अंडर 19 के इवेंट्स हुणे आप डिस्कस किया वैस्ट इंडीज़ होस्ट करेगा 2020 का होस्ट किया जा चुका, साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया सी। सिमिलर तरीके 2021 अंडर 19 वूमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश होस्ट करेगा और यह इसका फर्स्ट एडिशन है, पहली बार होस्ट करेगा, पहली बार यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा। इसी के नाल T20 की गल करते हैं। 2020 का ICC मैनस T20 टाइटल 2022 के विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया द्वारा और 2021 इंडिया होस्ट करेगा। 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद प्रोफेसर यशवंत राव केलकर यूथ अवार्ड 2020। प्रोफेसर यशवंत राव केलकर यूथ अवार्ड 2020 किन्हां नूं दिता गया? यह अवार्ड किन्हां नूं दिता गया है? तो यह अवार्ड दिता गया है मनीष कुमार नूं। मनीष कुमार कित्थों बिलोंग करते हैं? बिहार तो बिलोंग करते हैं। बिहार के मनीष कुमार नूं प्रोफेसर यशवंत राव केलकर यूथ अवार्ड 2020 दिता गया। ठीक है जी, याद रखना। इस तो इलावा बाकी चारों ऑप्शन न्यूज़ के रहे ने, चारों ऑप्शन के बारे डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। सब तो पहले मनीष कुमार के रिलेटेड आप डिस्कस कर लिया, कित्थों बिलोंग करते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा बिहार तो। नेक्स्ट है बनंजे गोविंदाचार्य, एक ओबिचरी है, एक इंपोर्टेंट ओबिचरी। बनंजे गोविंदाचार्य एक एमिनेंट स्कॉलर सीगे संस्कृत लैंग्वेज के। किहड़ी लैंग्वेज के स्कॉलर सी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो संस्कृत लैंग्वेज। इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि इन्हों USA द्वारा वर्ल्ड पीस समिट के लिए 1979 का सीगा जिहड़ा उसदे लिए एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। इन्हों 1979 दे विच वर्ल्ड पीस समिट के लिए एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। सेनी विश्वनाथन थोड़ा याद होएगा आप डिस्कस किया परसों डिस्कस किया कि नरेंद्र मोदी द्वारा एक फैसटिवल इनोग्रेट किया गया सी, इंटरनेशनल भारती फैसटिवल नूं इनोग्रेट किया गया सी, जो कि 138th बर्थ एनिवर्सरी सी भारती पोएट सीगे जिहड़े उन्हां दी। तां इसी दे विच एक अवार्ड दिता गया भारती अवार्ड 2020 भारती अवार्ड। ये किन्हां नूं दिता गया? सीनी विश्वनाथन नूं यह अवार्ड दिता गया। नेक्स्ट है शेख मुजीबुर रहमान ने जिहड़े इन्हां दे बेसिकली इन्हां नूं कह सकते हैं जिस तरीके नाल इंडिया दे विच महात्मा गांधी नूं फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी तरीके नाल फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम नाल जाने जाते हैं। इन्हां दे नाम दे उत्ते यूनेस्को द्वारा एक अवार्ड शुरू करने के लिए अनाउंस किया गया। डिटेल में डिस्कस करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीज़ां रहनगियां किवें कि यूनेस्को ने
डिसाइड किया टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी कि अगले साल के बेसिकली नवंबर के इस अवार्ड को अनाउंस किया जाएगा। तो नवंबर के क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड के लिए यूनैस्को द्वारा एक अवार्ड हर साल दिता जाएगा। ठीक है जी, इसमें शुरू किया गया है। किन्ना दे नाम दिते? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने बंगबंधु के नाम जानिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, जिस दे विच प्राइज मनी इंपोर्टेंट रहेगी $50,000 की प्राइज मनी दी जाएगी। इसी दे नाल यूनैस्को ने 2021 नू इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अनाउंस किया है। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी और क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए ही 2021 नू एज ए ईयर भी नामित किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ओम बिरला जो कि लोक सभा के स्पीकर ने कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने, इन्होंने द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई द शौर्य अनबाउंड अबाउट करेज स्टोरीज ऑफ CRPF जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इन्हों दी करेज स्टोरीज के उत्ते एक बुक है, एक बुकलेट कह सकते हैं, द शौर्य अनबाउंड नूं किन्हां द्वारा रिलीज़ किया गया? तो लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट विच बैंक हैज़ लॉन्च 9 बिलियन एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी। ये डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि किहड़े बैंक द्वारा एपवैक्स इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एपवैक्स इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी। एशिया पैसिफिक वैक्सीन असेस फैसिलिटी इस दे लई 9 बिलियन की अनाउंसमेंट की गई है ADB द्वारा अनाउंसमेंट की गई। ADB द्वारा ही इंडिया नूं काफ़ी ज़्यादा फंड भी प्रोवाइड किया गया। आपां कल की क्लास के भी परसों की क्लास के भी डिस्कस किया और कल भी आपां डिस्कस किया। तो ADB द्वारा ही एपवैक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ADB के बेसिकली प्रेजिडेंट द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। प्रेजिडेंट कौन ने? मसत्सुगु आसाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। मैट्रो मनीला फिलीपीनस के इसका हैडकुआटर है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वाइस प्रेजिडेंट का नाम याद रखांगे अशोक लवासा। वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक के हैड की गल करते हैं डेविड मलपास ने और IMF के हैड की गल करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने। दोनों का हैडकुआटर वाशिंगटन DC के विच है। दोनों के 190 मैंबर कंट्रीज़ ने और 190वीं मैंबर कंट्रीज़ उन्होंने किहड़ी है? एंडोरा। NDB का हैडकुआटर शंघाई चाइना के विच है। AIIB का हैडकुआटर बीजिंग चाइना के विच है। NDB के हैड मार्कोस त्रियोजो ने और AIIB के हैड जिम लिक्विन ने। AIIB के विच 103 मैंबर कंट्रीज़ ने और NDB की गल करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, यानी कि 5 मैंबर कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन जयपुर फॉर रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर RBI है। ठीक है, पर एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके ना पूछा जा सकता है कि RBI द्वारा अनाउंस किया गया है कि सैटअप किया जाएगा ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। ये किहड़ी सिटी दे विच ऑर्गेनाइज किहड़ी सिटी दे विच सैटअप किया जाएगा? तो यह कीवर्ड इंपोर्टेंट बनेगा जयपुर। जयपुर की गल करते हैं, जयपुर राजस्थान के विच RBI द्वारा की बनाया जाएगा एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, ताकि जी करंसी नोट्स ने उन्होंने रिसिप्ट स्टोर किया जा सके और डिस्पैच किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा, RBI की गल करते हैं तो RBI 1 अप्रैल 1935 के विच बनाया गया सी। RBI मुंबई के विच हैडकुआटर है। RBI के गवर्नर का नाम याद रखांगे शक्तिकांत दास। इस तो इलावा RBI के कुछ होर इंपोर्टेंट परसन के बारे डिस्कस करते हैं। न्यूज़ एक होर RBI रिलेटेड। इस तो इलावा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड न्यूज़ है, वह भी डिस्कस करते हैं। RBI ने की कराया 3 चीफ जनरल मैनेजर, RBI के 3 चीफ जनरल मैनेजर्स नूं की किया एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर्स बनाता, जिन्हों का नाम है R सुब्रमण्यन, रोहित जैन और RS राठौर। R सुब्रमण्यम, रोहित जैन और RS राठौर, इन्होंने तीनों चीफ जनरल मैनेजर से तीनों, और इन्होंने की बना दिता गया एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर्स अपॉइंट किया गया।
वैसे अगर आरबीआई की गल करते हैं तो दो नाम होर इंपोर्टेंट बनने, दोनों नाम याद रखांगे। तो एम राजेश्वर राव का नाम, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे ने, तो उन्होंने विचों ਜਿਹੜੇ बिल्कुल रीसेंटली अपॉइंट किए गए हैं वो कौन ने, एम राजेश्वर राव, इन्हों का नाम याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। दूसरा अगर आरबीआई की गल करते हैं तो एक नाम होर इंपोर्टेंट बनेगा क्रिस गोपाला कृष्णन का, क्रिस गोपाला कृष्णन, जिन्होंने रीसेंटली आरबीआई का इनोवेशन हब है जोड़ा उसका चेयरमैन अपॉइंट किया है। आरबीआई द्वारा बिल्कुल रीसेंटली इनोवेशन हब बनाया गया और उसके लिए चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। चेयरपर्सन किन्होंने अपॉइंट किया गया, क्रिस गोपाला कृष्णन, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर भी ने। इस तो इलावा इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर पूछा जा सकता है कितने है, चेन्नई दे विच। या दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि किहड़े बैंक द्वारा 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी नूं लॉन्च किया गया है, तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। अच्छा, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की गल करते हैं, रीसेंटली न्यूज़ के विच रहा सी समृति मंधाना करके, समृति मंधाना जो कि इंडियन क्रिकेटर ने, जिन्हां दी टीम ट्रायल ब्लेजर्स द्वारा वूमेन T20 चैलेंज जितया गया सीगा, इन्हां ने ब्रांड एंबेसडर नामित किया सी। ठीक है जी। इसी दे नाल इन्हां ने ईवा फैसिलिटी नूं भी लॉन्च किया सी वूमेन्स दे लई ईवा फैसिलिटी नूं भी लॉन्च किया गया सी। ठीक है जी, ये याद रखांगे। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क, केड़ी कंपनी द्वारा वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया गया है, तो इसनों लॉन्च किया गया BSNL द्वारा। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, फुल फॉर्म की गल करते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की फुल फॉर्म है। अच्छा, BSNL की ही गल करते हैं ना, BSNL ईयर 2000 के विच बनाया गया सी। BSNL का हैडकुआटर कित्थे है, दिल्ली दे विच है। BSNL के हैड की गल करते हैं ना, प्रवीण कुमार प्रेजेंट हैड ने BSNL के। तो वर्ल्ड द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड, बेसिकली कह सकते हैं पोर्टेबल वाईफाई कह सकते हैं कि वह डेवलप किए गए हैं IoT नैटवर्क के उत्ते बेस्ड। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड डिप्लोमैटिक टाइज विद भूटान के नाल डिप्लोमैटिक टाइज केड़ी कंट्री ने सैटअप किए ने रीसेंटली, तो अपना आंसर होएगा इजराइल ने। ये काफ़ी थोड़ी कह सकते हैं कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि दूसरी कंट्रीज़ के नाल एग्रीमेंट्स वगैरह काफ़ी घट लैवल के उत्ते साइन कर दी है। क्यों साइन घट लैवल पर अगर साइन कर दिए, न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट इस करके है क्योंकि भूटान एक ऐसी कंट्री है जो कि सस्टेनेबल गोल्स के उत्ते ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, ये कंट्री के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा ध्यान देती है। तकरीबन 60% एरिया है जो भूटान का वो फॉरेस्ट एरिया है, वो इसे करके है क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया डिप्लोमैटिक टाइज के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया या डिफरेंट फील्ड्स के विच कोऑपरेशन किया जाएगा इजराइल के नाल। ठीक है जी। भूटान द्वारा ही रीसेंटली जर्मनी के नाल भी पार्टनरशिप की गई सी, पर डिस्कस किया सी, याद रखांगे। भूटान रिलेटेड अगर कुछ पुरानी न्यूज़ की गल करते हैं तो इंडिया के नाल किस तरीके के रिलेशनस ने भूटान के, तो रुपए कार्ड के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया सी। रुपए कार्ड का सैकेंड फेज लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान के विच। लोटे शीरिंग इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने भूटान के नाल ही इंडिया ने इस मीटिंग के विच ही इसरो के रिलेटेड भी अनाउंस किया गया सी कि भूटान की सैटेलाइट में लॉन्च करेगी इसरो। ठीक है जी, और एक सेंटर भी डेवलप किया जाएगा भूटान के विच इसरो द्वारा। इस तो इलावा मांगडेचू डैम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखना है। इसनों अवार्ड भी दिता गया सी मांगडेचू डैम नूं, जिसनों भूटान के विच इंडिया की हैल्प के नाल बनाया गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा सस्टेनेबल टैक्स इंपोर्टेंट रहेगा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, पर डिस्कस की हुई है कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने सस्टेनेबिलिटी टैक्स लगाया हुआ है। अगर कोई भी परसन भूटान के विच एज ए टूरिस्ट जाता है तो उसनों पर डे के हिसाब नाल कोई टैक्स पे करना पैंदा, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी टैक्स। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। बाकी कंट्रीज के रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले यूके एक इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार लंडन जी सिटी है ये मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी है वर्ल्ड की मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी केड़ी है लंडन। रिसेंटली वर्ल्ड की मोस्ट कनैक्टेड सिटी
वर्ल्ड दी मोस्ट कनैक्टेड सिटी किहड़ी सिटी नूं नामित किया गया सी? शंघाई सिटी। शंघाई सिटी चाइना दी। नैक्सट है यूएसए। यूएसए द्वारा सैंक्शनस लगाए गए टर्की के उत्ते। यूएसए द्वारा सैंक्शनस लगाए गए टर्की के उत्ते। इस रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लें कि टर्की जी कंट्री है, यूएसए है जी, यूएसए द्वारा बेसिकली सिंपली एक रूल है जिस दे विच कहा गया कि अगर 3 कंट्रीज़ दे नाल कोई भी डील साइन करता सी उस कंट्री के उत्ते सैंक्शनस लगा देंगे। तो किहड़ी कंट्रीज़? ईरान दे नाल, नॉर्थ कोरिया दे नाल और रशिया दे नाल। ये 3 कंट्रीज़ दे नाल अगर कोई कंट्री डील्स साइन करती है असीं उस कंट्री के उत्ते की लगा देंगे? सैंक्शनस लगा देंगे। तो टर्की ने रिसेंटली रशिया के नाल डील साइन की सी किस दे रिलेटेड? S-400 के रिलेटेड। सो याद होएगा S-400 मिसाइल्स के रिलेटेड इंडिया ने भी डील साइन की हुई है, हालांकि रशिया के नाल। पर टर्की तो ऐसी कंट्री है जिसके उत्ते यूएसए द्वारा सैंक्शनस लगाए गए हैं। ठीक है जी। इस दे रिलेटेड बेसिकली बहस चल रही सी। अगर गल करते हैं डोनल्ड ट्रंप ने जिहड़े ये काफ़ी अच्छे रिलेशनस ने इन्हां दे टर्की के हैड के नाल, तो इस करके इन्हां दे उत्ते सैंक्शनस नहीं लगाए गए सी। जिस तरीके नाल इंडिया के रिलेशनस काफ़ी अच्छे ने, पर इस दे उत्ते बहस चली और यूएसए की सैनेट द्वारा या यूएसए की कांग्रेस द्वारा कह सकते हैं फाइनली अप्रूवल दी गई और अनाउंसमेंट की गई है कि सैंक्शनस लगाए जा रहे हैं टर्की के उत्ते। ठीक है जी। टर्की कैपिटल अंकारा है, करंसी इत्थे ऊरा चलती है, ये याद रखांगे। नैक्सट है उज्बेकिस्तान। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी कि जिस तरीके नाल इंडिया, चलो इत्थे डिस्कस कर लेने कि जिस तरीके नाल एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कुछ ऐसे बैंक ने जिहड़े कि इंडिया नूं लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उस तरीके नाल इंडिया भी बाकी कंट्रीज़ नूं लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। लोन भी प्रोवाइड करता और ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है। तो जी लोन्स होंगे ने ये इंडिया खुद ना प्रोवाइड करके इंडिया द्वारा एक स्पैसीफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी बनाई गई है, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसनों एग्जिम बैंक कहने आप। एग्जिम बैंक द्वारा इसनों प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एग्जिम बैंक ने हुण उज्बेकिस्तान नूं लोन प्रोवाइड किया है 448 मिलियन का। 448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन कह सकते हैं प्रोवाइड किया गया उज्बेकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलर तरीके नाल मालदीव्स नूं भी इंडिया, मालदीव्स इसे करके ऑप्शन के इंक्लूड किया सी मैंने कि मालदीव्स नूं भी सब तो ज़्यादा लोन, इस तो इलावा निकारागुआ कंट्री है, मोजाम्बिक कंट्री है। ठीक है। होर भी काफ़ी कंट्रीज़ ने जिन्होंने इंडिया ने लोन प्रोवाइड किया है। तो मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जिसनों इंडिया ने सब तो ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है। 800 मिलियन की एक क्रेडिट प्रोवाइड की गई सी, 500 मिलियन एक प्रोवाइड किया गया है, 9 मिलियन एक प्रोवाइड किया गया। इस तरीके नाल काफ़ी अमाउंट है जी मालदीव्स नूं इंडिया द्वारा प्रोवाइड की गई। नैक्सट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। बेसिकली अज के दिन की गल करते हैं। अज के दिन 3 इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ने जिहड़े कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे। 15 दिसंबर यानी कि अज के दिन विजिट होएगी। तो किहड़ी स्टेट के विजिट होएगी? गुजरात के। इस दे रिलेटेड आप पहले भी न्यूज़ डिस्कस की सी, एक प्रोजेक्ट आप पहले डिस्कस किया है, वह भी डिस्कस करते हैं। बाकी स्टेट्स रिलेटेड भी न्यूज़ ने वह भी डिस्कस करांगे। तो स्टार्टिंग करते हैं गुजरात वाली न्यूज़ तो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट होनी है, जिस दे विच 3 इंपोर्टेंट चीज़ां। सब तो पहला डीसैलिनेशन प्लांट, एक डीसैलिनेशन प्लांट मनवी कच्छ दे विच। कच्छ दे ही 3 इंपोर्टेंट चीज़ां। तो डीसैलिनेशन यानी कि जिहड़ा सी वाटर है उसनों दे विच नमक अलग करके डीसैलिनेशन यानी कि पानी नूं पीण योग बनाया जा सके, एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा मनवी कच्छ दे विच। दूसरा हाइब्रिड एनर्जी पार्क, ये आप पहले डिस्कस किया हुआ है कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 30,000 मेगावाट गीगावाट का 30,000 गीगावाट का जो कि जो बन के तैयार हो जाएगा तो लार्जेस्ट पार्क होएगा, लार्जेस्ट एनर्जी पार्क होएगा। ये कित्थे बनाया जा रहा है? विघलकोट विलेज कच्छ डिस्ट्रिक्ट के। और तीसरा फाउंडेशन स्टोन ऑफ फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसैसिंग एंड पैकिंग प्लांट, एक मिल्क प्रोसैसिंग और पैकिंग प्लांट लगाया जाएगा, फुली ऑटोमेटेड प्लांट होएगा। तो कित्थे? ये शरहद डायरी अंजर कच्छ दे विच, शरहद डायरी अंजर कच्छ दे विच। तो 3 इंपोर्टेंट प्लांट्स कित्थे लगाए जा रहे हैं? गुजरात दे विच लगाए जा रहे हैं। ठीक है जी। नरेंद्र मोदी वैसे अगर गल करते हैं गुजरात तो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं काफ़ी टाइम, याद रखांगे। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की गल करते हैं तो BS येदुरप्पा, इन्हों द्वारा 2 इंपोर्टेंट मशीन्स नूं लॉन्च किया गया है। तो किहड़ी मशीन्स? भू-सिरी और भू-मित्र। भू-सिरी की एक मैनुअल मेकिंग मशीन है यानी कि खाद बनाती है भू-सिरी, और
भूमित्र सॉयल टेस्टिंग मशीन है कि सॉयल ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ। यूपी की गल करते हैं तो यूपी के चीफ मिनिस्टर, दो इंपोर्टेंट न्यूज़ कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा कैलाश मानसरोवर भवन ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूपी ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ कैलाश मानसरोवर भवन ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही अनाउंस किया गया कि जी रिपब्लिक डे आ रही है 2021 की, उसकी परेड के लिए रिपब्लिक डे 2021 जनवरी जिसके रिलेटेड आप डिस्कस किया कि बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनवाइट किया गया है। तो इन्हों द्वारा यूपी गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि इस जी उन्होंने टैबिल्यू होएगा, परेड के डिफरेंट स्टेट्स द्वारा डिफरेंट टैबिल्यूज लगाए जाते हैं। तो जोड़ा यूपी का टैबिल्यू होएगा वो राम टैंपल के उत्ते होएगा, राम टैंपल देते होएगा अयोध्या कल्चरल हैरीटेज उत्तर प्रदेश। यूपी वाला ज़्यादा इंपोर्टेंट इस करके क्योंकि अयोध्या टैंपल नू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रिसेंटली, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच है, इंपोर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गल करते हैं भगत सिंह कोश्यारी द्वारा, दो इंपोर्टेंट न्यूज़। पहला कि भगत सिंह कोश्यारी ने 30th एनुअल ग्लोबल कॉन्क्लेव इनोग्रेट किया किसका? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का। गवर्नर कौन ने? भगत सिंह कोश्यारी ने। और चीफ मिनिस्टर की गल करते हैं उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ही महाशरद एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी बनाया गया, नवा डिपार्टमेंट बनाया गया सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो किन्ना दे नाम देते? महाशरद नाम बनाया गया। महाशरद नाम बेसिकली शरद पवार ने जिहड़े उन्हां दे नाम दे उत्ते यह नाम रखा गया है। और बेसिकली अगर आप गल करते हैं तो इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर इन्हों इस डिपार्टमेंट में शुरू किया गया, स्पैसीफिकली डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।